अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हौसला रखें, हिम्मत रखें। मुझे अंदाजा है जो आप पे बीत रही है, आपकी बेटी है, उसके इंसाफ के लिए लड़ना है ना? हाँ जी। इंसाफ के लिए लड़ना जी। है। मैं भी आपके साथ हूँ, आमीन। आपके साथ हूँ। बहुत बुरा हो गया, यकीनन बहुत बुरा है। इसका जितना बहुत बुरा हो गया। तरले तरले लेने पे 3 महीने हो गए ने सानू। कोई समझ नहीं आती कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, कौन इंसाफ कितों मिलेगा। वो ऊपर बैठा है ना, नीली छतरी वाला बैठा है ना वो। बेदोस मेरी बेटी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਫਾਨ ਤਰਲੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। अच्छा, वो कहाँ थी? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। अच्छा, कहाँ लेके गया था? 2 दिन ਆਹ ਠਹਿਰਨਾ ਮਰੀ अच्छा ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। अच्छा, ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, समझ नहीं आती। अकल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अकल ख़त्म हो गई। एक गरीबी, एक जलालत, एक बेटी जवान चली गई। अच्छा चला गया, लै गया, नहीं सानू कोई राबता नहीं होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 6 तरीक को 7वें महीने की 6 तरीक को लैके गया तो पूरा महीना ने साडा इंज ही लारियां विच ही जाया कीता। आज आ जांदी है, आज तुहाडे तो नाल बताया नहीं कहाँ पे है? ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੀ 7 ਤੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। अच्छा ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਚਲੋ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 10 दिन गुजर गए। कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं आपकी? कोई फोन तो इत्थों ही बेटा बंद हो गया सी। अच्छा, उसे रात ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। फिर ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ये क्या बताता था कि वो कहाँ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मैं कुछ लेने आया हूँ, कुछ खाने पीने के लिए। हाँ, तो मैं जाता हूँ तो बात कराता हूँ। तो फिर 8 तरीक को दुबई टुर गया। ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਤੋਂ 21 ਲਈ ਗਏ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 20 ਤੋਂ 21 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 21 ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਈ, तो साडा राबता कराओ, अपने फोन तो ही करा दो ना करो। ਤੁਹਾਡੀ बीवी है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਰਾਬਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੇ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਿੰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਲਾ ਛੜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कर लो। ये जो कातिल है, हाँ, ये इस कातिल ने ये भी दुबई में था। ये दुबई में आया और उधर ही गया। आप लोगों को अपनी बेटी की डेड बॉडी भी नहीं मिली? मिल गई है, अहाँ कि देखी, वो बेचारी पुरदे खाक हो गई। कोई 2.5 महीने बाद पता, भैन 2.5 महीने बाद पता चलिया। ढूंढते ढूंढते उत्थे पहुँच गया। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੂੰਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੜੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਡੇਡੇ ਪਕਵਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਜੈਸਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਤੜਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਦ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਰਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਜੈਸਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਜੈਸਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। नाज़रीन, उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने ऐसा क्यों किया? पहले
उसको अपने सांचे में ढाला, फिर उसके बाद उसे शायद यकीन दहानी करवाई कि तुम पर कभी आंच नहीं आएगी, और फिर खुद ही उसका कातिल बन गया। वो कौन है आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें चश्मदीद गवाह भी है। उनसे जानते हैं कि क्या देखा था, असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप चश्मदीद गवाह भी हैं। जी। क्या देखा था आपने? जी मैं दोस्त है मेरे, और मैं भाई को बुलाने गया था घर पे, तो मैंने फ़ोन किया तो ये कह रहे हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैं उधर ही खड़ा था, तो गाड़ी आई है, भाई निकले, फॉर्च्यूनर थी, कोई डॉन मॉडल ही था। तो वो हाँ वो सामने खड़ी है, गली के सामने खड़ी है। तो भाई आए हैं, उन्होंने बैग रखा है गाड़ी में। कौन से भाई? इनके भाई आए हैं जो उनके शोहर थे ना, वो खड़े थे, और अंदर से ये भाई हैं इनके हारून, जो बहन का कत्ल हुआ, जिस बहन का कत्ल हुआ, हाँ वो साथ में बैग लेके आए थे, बहन भी उनके साथ ही आई थी, और उन्होंने गाड़ी में बैग रखा है और वो बैठे हैं और चले गए हैं। अच्छा जी। इरफान था, साथ उनके और 2 भाई थे, ये 4 लोग आए थे, क्योंकि बाजी जो इनकी सिस्टर है ना, उनकी नाराजगी थी, और वजह यही थी कि उन्होंने पहले से शादी की हुई थी इरफान भाई ने। तो ये कह रही थी कि मुझे अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं। बस ये थे, बीवी मेरा भी हक है कि आपकी फैमिली जो है ना वो मुझे मिलवाएं। तो वो जब भी दुबई से वापस आते थे तो इनकी अम्मी के घर छोड़ देते थे, अपने घर नहीं लेके जाते थे। बस वही वजह उनकी अनाथ थी। दुबई में इनके साथ रहते थे। दुबई में साथ रहते थे, लेकिन जब भी पाकिस्तान आते थे तो इनको अम्मी के यहाँ छोड़ देते थे। और इनका बड़ापन ये है कि इन्होंने कभी एतराज नहीं किया था। वालदा यानी बेटी को रखती थी? वालदा बेटी को रखती थी, भाइयों के साथ रहती थी। वहाँ पे इनके 30-40 घर थे जहाँ पे वो आके ठहरती थी, लेकिन इन्होंने इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन्होंने कैसे कत्ल किया? और उस दिन क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, उस दिन ये लेके गए थे कि जी हम आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो आपकी शर्त है वो पूरी करते हैं। अच्छा। तो उसको लेके गुजरात जाते हैं। तो गुजरात लेके चले गए। इरफान था साथ इनके, अभी ये जो शबाज पकड़ा हुआ है, ये फिर इनके साथ दुबई में काम करता था, इकट्ठे ये गाड़ियों का शोरूम था इनका ना। तो इन दोनों ने, साथ इनके 2 और लोग थे, इरफान का भाई था और इसकी फूफो का बेटा था। इन्होंने वहाँ मशवरा हो के, और इरफान की जो पहली बीवी है इल्म हो चुका था, सादिया, उसको इल्म था, उसी ने सारा इनको कहा जी या तो इसको कत्ल करें या इसको तलाक दें। तो इससे बेहतर था कि उसको छोड़ देते। जी छोड़ देते, वो बेहतर था। लेकिन उन्होंने उनकी बातों में आके तो इरफान ने और इसने, ये जो अंदर बंदा है शहबाज, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, जिसके इंकशाफ के ऊपर की इसने नहर में लाश बहा दी है। वो लाश फिर हमको मिली है शादीवाल के करीब ना, कुंजा थाना की हदूद में। वहाँ से डेथ बॉडी मिली। शनाख्त के काबिल तो नहीं होगी? नहीं, शनाख्त के काबिल नहीं है। ये जो कपड़े पहने हुए थे, घड़ी पहनी हुई थी, वो उससे शनाख्त होगी। जब घर से बाजी गई है तो उसके जेवर था को 10 तोले करीब उन्होंने पहना हुआ, वो गोल्ड था, उनका मोबाइल फोन था, वो आईफोन पहना हुआ था, ऐसे सारा गोल्ड पहना हुआ था। लेकिन इन्होंने उतार लिया ना, जब कत्ल किया तो सोना उतार लिया, गोल्ड सारा उतार लिया, बाकी चीजें घड़ी वगैरह पहनी हुई थी। उससे ये लाश की शनाख्त हुई है ना, तस्वीरें जब हमें दिखाई गई हैं उससे वो शनाख्त हुई है। चले जी, अल्लाह आप लोगों को भी सब्र दे। जाहिर है आप लोग इलाके के लोग हैं। पकड़ा हुआ है, इसका जो मोबाइल फोन है उसका कोई पता नहीं है। बिल्कुल जी, पुलिस अब इंटरोगेट करेगी सारा मामला, क्योंकि एक शख्स ने बेदर्दी से बैरून मुल्क पलट खातून को कत्ल कर दिया, और कहने को वो उसका शौहर है। क्यों कत्ल किया? अगर वो उसको अपने खानदान में शामिल नहीं करना चाहता था, किसी को मिलवाना नहीं चाहता था, तो उसको छोड़ देता, उससे अलहदगी ले लेता। और अगर उसको अलहदगी नहीं लेना चाहता था उससे, और उसको सबके सामने करना चाहता था, तो फिर कत्ल की वजह क्या थी?